Hello everyone. Welcome to our channel IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 20th of July 2023. From today's newspaper, we will be discussing about the topics such as Indus Water Treaty, tomato price hike, NATO alliance, and about the disabled persons and a maze question. The mains questions, which were given in the previous videos of 1 week, and the prelims based questions, we will discuss them all together in the upcoming video. For now, let us begin our today's first topic, that is about the Indus Water Treaty. So before starting the discussion, first of all, I'm so sorry that I have provided today's video so late. As I mentioned that I was not well. I will try to upload the videos from tomorrow before 10 a.m. For today, I'm sorry for the inconvenience. And before we start the discussion, please, I would like to request all of you to subscribe our channel, like and share so that we could provide you all the informations about the news editorials on time. Now let us begin with the first editorial about the Indus River. If you talk about the Indus River, firstly, let's focus on the map of India. Let's draw a more beautiful map. So something like this, you can draw the map of India. It's just a rough map. If I talk about the river system of India, it is majorly divided into two parts. All right. The first part is your Himalayan river system, and the second part is your peninsular river system. If I talk about the Himalayan river system, the source is Himalayas, that is the glacier. And three important rivers are part of this. One is your Indus River, which is also known as the Sindhu in Hindi. Then the Ganga River, and after that, the Brahmaputra River. Okay. So, our today's topic is related to this Indus River, on which ancient civilization is also based, that is Indus Valley civilization, which you study in your ancient history syllabus, or the Sindhu Ghati Sabhyata. So let's talk about the treaty. This was a treaty which was signed in 1960 between India and Pakistan. It is a treaty with respect to the sharing of the water. Water क्या घर का पानी? No. It is talking about the sharing of the water of Indus River, and it was brokered by World Bank. With the help of World Bank, both the countries, India and Pakistan, signed a treaty through which they have decided to share certain amount of water between both the countries of the Indus River. The treaty spells out the conditions for the water sharing of the river Indus और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो, जैसे कि इंडस है, चिनाब है, झेलम है, रावी, ब्यास, सतलज. तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज होती है इंडस रिवर की. इफ आई टॉक अबाउट द इंडस रिवर, उसकी जो ईस्टर्न साइड की जो रिवर्स होती है, जैसे कि 3 ईस्टर्न रिवर्स है, रावी, ब्यास और सतलज. इन तीनों रिवर्स पे एज पर द ट्रीटी कंट्रोल है इंडिया का, राइट. एंड ऑल द rivers from western side, that is the Chenab, Jhelum, Indus, इन पे कंट्रोल है पाकिस्तान का as per the treaty. So all the waters of the eastern rivers shall be available for the unrestricted use of India until the rise of unwanted situation. तो इस ट्रीटी को छोड़ के अगर हम बात करते हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स है जिस पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, वो रिवर से इंडिया जो है नॉन कंजप्टिव जो यूजेस है वो अपना उसका काम निकाल सकती है. यानी कि डैम नहीं बना सकती, कुछ स्टोर करने के लिए नहीं रख सकती, लेकिन अगर उनको कुछ
यूज करना है तो उस तरह से वहां पे वो यूज कर सकती है। एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो बनाई थी यूएन ने फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट दैट मे अराइज इन द वाटर शेयरिंग। देखो ये पूरा मुद्दा क्या है उसको हम समझते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी अभी तक की। व्हाई? बिकॉज दिस ट्रीटी साइन बिटवीन टू सच कंट्रीज, इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, इंडिया और पाकिस्तान। चाहे वो टेररिस्ट का इशू हो, राइट, चाहे वो इकोनॉमी का इशू हो, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, हिस्टोरिकल वॉर्स हो, इन दो कंट्रीज के आपस में नहीं बनती। स्टिल ये ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस है दोनों कंट्रीज ने फॉलो किए हैं। तो दैट इज द रीजन कि ये जो दोनों इस ट्रीटी को हम सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन अब रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे अब कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, पहले तो आप समझ लीजिए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम अभी आगे आने वाली साइड पे बोलेंगे कि जो पाकिस्तान है वो कहा गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। लेकिन ये है क्या? ये पहला इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस है जो कि 1899 में हुआ था। एक ऐसा कोर्ट है जो कि आर्बिट्रेशन, अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है तो इसमें आर्बिट्रेशन का काम क्या करता है, ये पीसीए करता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि सक्सेस क्यों है। देखो कश्मीर वॉर हुआ, सेकेंड कश्मीर वॉर हुआ, ये तो पहले की बात हुई। फिर ट्रीटी के बाद, ट्रीटी हुई थी 1960 के आसपास, है ना। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 में, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ 84 और 2003 में, कारगिल वॉर हुआ। ये सब होने के बावजूद ये ट्रीटी जो है साइन हुई। ये ट्रीटी की जो प्रोविजंस है दोनों कंट्री ने जो है फॉलो किए। और इसको, इस जो ट्रीटी है उसमें ताज्जुब की बात यह है कि 20% वाटर इंडिया के पास और 80% जो हिस्सा वो पाकिस्तान के पास है। तो इसको एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू का ब्लंडर बोला जाता है। अब बैकग्राउंड को समझते हैं। As I've not read, so I will, just tell you the key points and then you can read from the notes or the PDF provided to you on the email or on the slides by yourself. Alright? So what I want to say कि इसका जो story है, the background story, what is that? इंडिया के दो प्रोजेक्ट्स है ना। तो इंडिया हैज started two important hydroelectric प्रोजेक्ट। एक था आपके पास किशनगंगा रिवर के ऊपर और एक था आपके पास किशनगंगा जो कि है झेलम के ट्रिब्यूटरी, और दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास राटल या रैटल जो भी आप उसको बोलना चाहो, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है चिनाब रिवर के ऊपर। इंडिया का कहना है कि हमने ये प्रोजेक्ट बना के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन नहीं किया है ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। बट पाकिस्तान इज सेइंग कि यू हैव ब्रोकन दिस प्रोविजन। यार इसी मुद्दों को लेके पाकिस्तान यूनिलेटरली पहुंच जाता है आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास। और इंडिया का कहना है इस ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाओगे यूनिलेटरली। तो आपने खुद ने ही इस प्रोविजन का ब्रेकडाउन कर लिया है, ट्रीटी का ब्रेकडाउन कर लिया है। तो इसके बावजूद जब आपने ब्रेकडाउन कर ही लिया है, आप हम पे ब्लेम डाल रहे हो, तो बेटर है कि नाउ वी शुड सिट वन ऑन वन एंड डिसाइड कि इन फ्यूचर अब इस ट्रीटी का क्या कर सकते हैं। बिकॉज एज पर दिस ट्रीटी इंडिया हैज पावर, इंडिया हैज राइट टू अमेंड दिस ट्रीटी टू चेंज द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी। तो नाउ अगर आपने 90 डेज के अंदर अंदर इसका जवाब नहीं मिलता तो इंडिया विल थिंक ऑन इट, इंडिया विल चेंज द प्रोविजंस ऑन इट। बिकॉज इंडिया का कहना है कि इंडिया इज लाइक दिस ट्रीटी इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल शेयर ऑफ द वाटर, ना कि हम पानी रोक के आपको परेशान करना चाह रहे। सो इंडिया रेज ऑब्जेक्शन एज इट व्यूज दैट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट competent to consider the questions put to it by Pakistan, and that such questions should instead be decided through the neutral expert process. The court determined that it is competent to consider and determine the dispute set forth in the Pakistan request for the arbitration. अब फ्यूचर सप्लाई ऑफ वाटर, देखो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो ट्रीटी जब बायलेटरली साइन हुए कि 20% पानी जो इंडिया का है इस तरफ वाला और 80% क्या है वेस्ट साइड वाला पाकिस्तान है। लेकिन फ्यूचर में क्या पता कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बिल्कुल ही पानी ना आए, रिवर सूख गई है,
डाइवर्ट हो गई है या कुछ भी हो जाए तो ये एक बहुत ही अनसेफ ट्रीटी यूज इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ लैक ऑफ ट्रस्ट. It is not likely to address the rapidly growing industrial need of two countries. ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, it provides only some element of predictability and certainty with regard to future supply of water to riparian states. तो ये जो bilateral water agreements है, they are very very vulnerable to climate change, as most of them include the fixed allocation of the amount of water use that are concluded under the assumption that future water जो है will not remain same as it is today. तो climate change के साथ will the climate change altering the form, intensity and timing of precipitation and runoff assumption regarding the supplies of water for agricultural purposes and industrial needs does not hold true. ठीक है. Now what are the principles of the water course? The partitioning of river of Indus between India and Pakistan goes against the logic of treating the entire river basin as one unit. कैसे? The thrust of Indus Water Treaty is the optimal use of water, which India believes to the object and purpose of IWT, as opposed to Pakistan understanding to be uninterrupted flow of the water to its side. इस ट्रीटी का जो इंटरप्रिटेशन है इंडिया की तरफ से वो ये है कि इसका पर्पस क्या है कि उसका बेटर एफिशिएंट यूटिलाइज हो रिवर का, बट इसका इंटरप्रिटेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से क्या कि जो वाटर का फ्लो है वो अनइंटरप्टेड वे में होना चाहिए. द डाइवर्जेंट अप्रोच कैन बी सॉट विद टू थिंग्स. पहला, या तो हम यहाँ पे दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स को कंसीडर कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज द इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, और सेकंड है प्रिंसिपल नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और नो हार्म रूल, दैट इज एनएचआर. लेकिन जो पहला है इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन, उस पर हमेशा ज्यादा फोकस हुआ है. तो अभी तक कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं कि इक्विटेबल रीजनेबल जो यूटिलाइजेशन है उसका मतलब क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करें, इसका कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं. तो द स्टेट नीड टू गाइड बाय द फैक्टर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ 1997. इसमें क्या लिखा है कि जो नो हार्म है इस ड्यू डिलिजेंस ड्यूटी विच रिक्वायर्स अ राइपेरियन स्टेट अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट. ठीक है. अब हम आते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर. जो वाइटल ह्यूमन नीड्स है वो आर डिबेटेबल, बट इंक्लूजन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स will help in erasing the difference. And World Bank का क्या कहना है कि हमको अगर इस ट्रीटी पर रिविजिट करना है तो this will ultimately help both the countries. Now, coming to the next topic about the tomato price hike. टोमेटो, अगर हम टॉप जो क्रॉप्स की बात करते हैं, टॉप जो फूड है उनकी बात करते हैं, यानी कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो. इसमें टोमेटो की वजह से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो हुआ है रिसेंटली. पर टोमेटो का प्राइस बढ़ क्यों रहा है इसको समझते हैं. इंडिया के अंदर इफ आई टॉक अबाउट टू स्टेट, एक आपके पास महाराष्ट्र है और एक आपके पास कर्नाटक है. दीज आर द टू स्टेट्स which are major producers of tomato in India. And दोनों ही स्टेट के अंदर their crop of tomato has got infected with two important viruses. In Maharashtra, it is the cucumber mosaic virus, and in Karnataka, it is the tomato mosaic virus. Okay. Now, what is virus? सबसे पहले if I want to define कि वायरस क्या होता है, तो वायरस is a link between living and non-living. ओके. कैसे? अगर वायरस जो है एनवायरमेंट में ऐसे ही पड़ा है तो इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट बाय इटसेल्फ. तो व्हाट दिस वायरस डज, इट गेट ट्रांसमिटेड. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये वायरस ट्रांसफर होता है अपने होस्ट के अंदर, यानी जहां पे ये बीमारी करेगा, और उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करके ये रेप्लिकेट करता है. यानी जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, इट वाज नॉन लिविंग, it got transmitted in a host which is a living. So it is a connecting link between a non-living and a living organism. ठीक है. तो यहाँ पे दो वायरस है. महाराष्ट्र की जो क्रॉप है इट गॉट इन्फेक्टेड विद द कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, एंड कर्नाटक जो है टोमेटो मोज़ेक वायरस. एंड अ बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कि इन्फेक्शन की वजह से जो क्रॉप फेलियर हुआ है
उससे सप्लाई आपके पास कम हो गई है, डिमांड उतनी की उतनी है, ठीक है। तो डिमांड आपकी उतनी की उतनी ज्यादा और सप्लाई कम हो गई, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द हाइक इन द प्राइसेस, दैट इज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। So over the last 3 years, the growers of tomato have complained of increased infestation with these two viruses, leading to partial, complete, or the total losses. So what are pathogens? Pathogens यही है. Pathogens are those organisms which cause diseases. So what are pathogens? Pathogens are disease-causing organisms. आपके पास बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरस हो सकते हैं या कुछ और ऑर्गेनिजम्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब हम टोमेटो मोजेक वायरस के बारे में बात करते हैं। इट बिलोंग टू द विर्गिविरिडे फैमिली। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है, इसका जो जीनस है वो क्या है, कौन सी क्लास है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फैमिली है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। So if I talk about the family, tomato mosaic virus belong to the Virgiviridae family, which is closely related to the tobacco mosaic virus. अगर इसके होस्ट के बारे में बात करें, होस्ट क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वायरस है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर उसका होता है ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिशन होता है, जहां वो बीमारी कर सकता है, यानी जिसका जेनेटिक मटेरियल यूज करके वो रेप्लिकेट कर सकता है, वो उसके होस्ट होते हैं। तो टोमेटो मोजेक वायरस की जो होस्ट है वो मल्टीपल है, उसका टोमेटो में भी बीमारी कर सकता है, पेपर है आपके पास, टोबैको है और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो भी आते हैं। अब ट्रांसमिशन यानी कि ये चीज किसके थ्रू हो रही है, या तो सीड इन्फेक्टेड हो आपके पास, एग्रीकल्चर टूल इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो फार्मर्स क्या बोलते हैं कि भाई हमारी फील्ड में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, हमने पूरा ध्यान रखा है, क्या सीड मैन्युफैक्चर होते हैं उन लोगों के वहां पे इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट, कुकुम्बर मोजेक वायरस, इसका होस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है, जैसे कि मेलन है, टोमेटो है, कैरेट है, सेलरी है। ये स्प्रेड होता है भाई एफिड से। एफिड इज एन ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, इंसेक्ट है, एक तरह से स्टेप सकिंग इंसेक्ट, जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लिक्विड पोर्शन स्टेप होता है उसको सक करके क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर और इंटरमीडिएट रेन। अब यहाँ पे मेरा मुद्दा आता है कि ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वायरस का इन्फेक्शन सडनली क्यों हुआ है, क्योंकि इन वायरस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर और इंटरमीडिएट रेन, विच इज अ रिजल्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे there are multiple factors for dip in the overall tomato production. The heat wave and high temperature जो कि अभी अप्रैल और मई में आपने देखा है, जिसकी वजह से मॉनसून भी डिलेड हुआ है, ये रीजन है कि आपको ये जो वायरस है इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया फॉर द ग्रोथ, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट गॉट इन्फेक्टेड, इट इन्फेक्टेड द क्रॉप्स एंड यहाँ पे आपको फेलियर देखने को मिला। Now coming to the सेंटर का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, सरकार कहती है तो सीजनल और टेम्पररी इशू इज नॉट अ बिग इशू, बट आरबीआई है, नाबार्ड है, उन्होंने कंसर्न जताया है कि इसके वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई इन्फ्लेशन है, उससे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो ये बहुत ही ऐसी क्रॉप्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे बहुत फर्क पड़ता है, और टोमेटो की वजह से अभी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है, ठीक है जी। अब कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेटो। अभी रिसेंटली नेटो की समिट हुई है, उसमें क्या क्या हुआ है वो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन नेटो क्या है, एज हम हर पिछले बहुत से वीडियो में हमने बताया है कि आपके पास जो अटलांटिक ओशन है, उसका जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उसके आसपास जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये उसका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक साथ खड़ा होना, टू काउंटर द सोवियत यूनियन। पहले सोवियत यूनियन था, अब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो रशिया हुआ। अब इस मीटिंग में हुआ क्या, इस मीटिंग में ये हुआ कि जो यूक्रेन है, आई पर्सनली फील बैड फॉर द यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के यूएसए ने रशिया पे वार किया है। कैसे किया है, यूक्रेन को बोला कि हाँ हम आपके साथ है, यू फाइट विद रशिया, यू फाइट विद रशिया, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको नेटो का सपोर्ट है। लेकिन जब नेटो में इंक्लूड करने की बात आई
तो नेटो ने मना कर दिया, ये कह के कि नाउ एट प्रेजेंट यू आर नॉट रेडी टू बी इंक्लूडेड इन द नेटो। कैसे? ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास डेमोक्रेसी है, ना आपके पास रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, तो यू आर नॉट मीटिंग अप द कंडीशंस, तो वी आर सो सॉरी, बट अभी नहीं, लेकिन बाद में हम जरूर देखेंगे। लेकिन बाकी चीजें यहाँ पे क्या हुई है, न्यू फॉरम फॉर द डीपनिंग टाइम, जो नेटो लीडर्स है, ठीक है, उन्होंने एक फोरम लॉन्च किया है जिसको बोला है नेटो यूक्रेन काउंसिल। इसका इंटेंशन क्या है, एक तरह से एक परमानेंट बॉडी की तरह काम करेगा, जहाँ पे 31 जो मेंबर्स है नेटो के, प्लस जो यूक्रेन है वो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। The setting is a part of NATO's effort to bring the Ukraine as a close as a military alliance. लेकिन अभी यहाँ पे नेटो ने उनको इंक्लूड करने के लिए मना कर दिया। कारण क्या है, कोई भी नेटो मेंबर नहीं चाहता कि हम रशिया के साथ डायरेक्टली वॉर में जाए और अपना टाइम, एनर्जी, पैसा बर्बाद करें, ठीक है। तो नो क्लियर पाथ फॉर द यूक्रेन, NATO members has clearly denied it. The summit did not provide a firm timeline for when the Ukrainians will become official members. तो इनको क्या बोला कि हाँ हम आपको इंक्लूड करेंगे, बट अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप कंडीशंस मीट अप नहीं करो, लेकिन कब इंक्लूड करेंगे नहीं बताया है। In their communique summarizing the summit conclusion, the leaders said that Ukraine can join when allies agrees and conditions are met. तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कुछ कंडीशंस और दूसरा बाकी सारे जो मेंबर्स है वो यूनानिमसली अगर सपोर्ट करते हैं तब एक नया मेंबर उसको इंक्लूड होता है, जबकि अभी मेंबर्स रेडी नहीं है। पहला तो कह रहे कि आप कंडीशन मेट नहीं कर रहे हो, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, आपकी जो रिपोर्ट्स बताती है उसमें आप अभी इसमें फेल कर रहे हो, प्लस एक साथ सारी कंट्री अभी हाँ नहीं कह रही है, तो अभी आप रेडी नहीं हो, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का क्या कहना है कि ये तो एक बहाना है, कोई भी नेटो मेंबर जो है रशिया के साथ वॉर नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेटो कि किसी एक कंट्री पर अटैक मतलब सब पे अटैक, तो रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा तो बाकी सबको भी फिर मिलकर उस पर अटैक करना पड़ेगा, तो कोई भी कंट्री अभी रशिया का इसमें डायरेक्टली अटैक के मूड में नहीं है। तो दिस इज द reality. Ukraine won new security assurances. A joint declaration issued by G7 issued during the summit lays the groundwork for each nation to negotiate the agreement to help the Ukraine forces military over the long term. Now, membership of the Sweden. स्वीडन और फिनलैंड जो है अभी नेटो के मेंबर्स बने, कैसे? सबसे पहले इसमें आप टर्की का चित्र देखिए भाई, टर्की हमेशा से नहीं चाहती थी कि स्वीडन जो है नेटो का मेंबर बने, और एक भी मेंबर ने मना किया तो मना किया, लेकिन अब टर्की जो है मान गया है। पहले क्या होता था, टर्की हमेशा बोलता था कि ये जो कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, तो हम नहीं चाहेंगे कि नेटो का मेंबर बने, बट अभी शिफ्ट हो गया, इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है बना दो, ठीक है, तो मेंबरशिप मिल गया। लेकिन ये जो नए नए मेंबर्स आप इंक्लूड कर रहे हो नेटो में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये जो अलायंस है, they are continuing the practicing of Article 10, जिसका मतलब क्या है, that the member countries can invite other European countries as well to become the NATO member, जो कि वो कर ही रहा है, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, यूक्रेन की खैर लटका रखा है इन्होंने, है ना। To address Ukraine's potential membership on fertile grounds and conceptually debtors Russia, तो रशिया को एक तरह से खतरा बताता है कि आप अगर कोई भी स्टेप लोगे नेटो के अगेंस्ट तो हमारे मेंबर्स एक साथ खड़े होंगे और जो मेंबर्स वो बढ़ भी रहे हैं। सेकेंडली, टर्की स्केलिंग बैक ऑफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग अपोजिशन टू स्वीडन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट रहा है। अब एक और आर्टिकल है, डिसेबल्ड जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया है अंडर द डिसेबल्ड एक्ट। एक फेमस लाइन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। फिर मोस्टली हम ये जुडिशरी की केस में बात करते हैं, बट अभी इस केस को एडिटोरियल जो है क्लाइंट को जो डिसेबल्ड जो लोग हैं उनके लिए ये यूज कर रहे हैं। ये डिसेबल्ड वाला जो चीज है आर्टिकल 41 डीपीएसपी से भी आप रिलेट कर सकते हो, दैट द स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इससे पहले जो रिजर्वेशन थे वो सिर्फ ग्रुप सी और डी जॉब्स के लिए होते थे, लेकिन अभी 3% जो रिजर्वेशन है वो फिक्स कर दिया गया है, एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द जॉब्स ऑफ ग्रुप ए एंड बी।
I hope the editorials are clear from today's lecture. Um, Please, if you like the video, write down in the comment section for any type of the feedback. We are valuable feedbacks are always welcome. Okay, the question जो है आज का, you can write about the India's stand on Indus Water Treaty should remain constant or it should remain or it should get changed. ठीक है? With respect to its neighboring countries, India's foreign policy should be changed or it should remain same. So the topic is clear. Thank you so much. Please subscribe our channel, like and share.